So, hi everyone, welcome to the fourth episode of Carpool Chats with Keshav. And today we have a very special person with us, Saurav De. Hi, sir. He's there with us from a very long time. Goes back to 2018, 17, 18 time. तो तब से है हमारे साथ सौरव दे. Saurav De is there from the aggregation business side. So that's a new twist to this episode. We wanted to bring people from the other side of the business, the aggregation side of the business, and people who are on the ground, on the operation side, who can share their experience, their stories from their entire time they've spent in SmartQ. And next up, this is we wanted this will be both in English and Hindi, a mix of English and Hindi, whatever Saurav will be comfortable with. So it will be a mix of both, and we just want the true stories of the people who come on to this chat and just get to know their other side and better side of things. So with that, how are you feeling, Saurav? कैसे लग रहा है आपको I'm too excited. Too excited? Yes. Amazing. तो ऐसे पहले किए हो कुछ? नहीं, this is my first time. फर्स्ट टाइम? Yes. बढ़िया है. मेरा भी फर्स्ट टाइम है. तो नो प्रेशर. मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ. और मेरा हिंदी तो उतना But बेस्ट it's fine, sir. We can थोड़ा manage. मैनेजेबल है. I can get along. Compared to 2017, right now it is too better. Oh, Yes. thank you. It's improved. My Hindi has improved. Yes. तो मैनेज कर लेता हूँ. और हाँ, तो पहले हम कब मिले सर? वी मेट इन दमनूर. Damlur, yes. दमनूर ऑफिस में. Yes. ये थोड़ा 2016 17 16 में. Yes, 16 June. तो तब तुम क्या कर रहे थे जब पहले आपको बाय को मिला? भाई को मिला ना. सो सौरव का एक बाय है सुप्रियो बोल के, एंड वो भी इसी ऑपरेशंस साइड से. वो दोनों वेर आर यू एक्चुअली? टेल मी अबाउट योर वेयर यू आर फ्रॉम. आपका किधर से है? आपका चाइल्डहुड बताइए थोड़ा. कैसे आप इस फील्ड में आए, ये सभी थोड़ा आपका स्टोरी बताइए. So actually, I am really thankful to Keshav sir and whoever give me the opportunity for this. I am really excited. Okay, first thing, and I have started my career in Bangalore from 2013 in December. Okay. So after I got to know from one of the guys who is doing the catering with the Next Up, so Nitesh. नीतीश. हाँ. So he informed me कि just inform your brother to he can work with the Next Up. This is the aggregation, aggregator food aggregation company. So I just come with him for the interview. तो बाद में केशव सर और तब क्या आइडिया था नेक्स्ट अप के बारे में? नेक्स्ट अप में सिर्फ वही था कि मतलब कंपनी को हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, बस उतना ही. थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं पता था कि व्हाट दे डू बेसिकली. So we just know कि okay, they are going to give the food to all the IT company, all these things. So we just got to know that only. So I just come down for the interview with my elder brother Supriyo De. हाँ, तो दोनों साथ में आए ना हाँ, इंटरव्यू के लिए? Because he don't know that much of English that point of time. So he Okay. knows only Hindi. Then I just come with him for the explain to the Keshav sir. I got to know कि from Nitesh कि Keshav sir is going to take the interview. So I don't know कि who is Keshav sir. Okay. Okay. So then we start from the कि what we have done earlier, all these things we have discussed. देन उसके बाद हम लोग केशव सर बोले कि ये सब कर सकते हो, कि क्या करते हो बेसिकली. पहले तो मैं नेक्स्ट टाइम में काम करता भाई जो है तो एल्डर ब्रदर, तो वो इज़ द फ्रेशर था. हाँ. तो नेक्स्ट गोदरेज में काम किए थे. अराउंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस था उनके पास. किधर काम किया था? नेक्स्ट अप ये गोदरेज नेचर बास्केट. गोदरेज. हाँ, गोदरेज नेचर बास्केट वर्ल्ड. तुम भी किए थे ना? और आपका भाई भी गोदरेज हाँ. नेचर बास्केट में किया था? HSR लेआउट वाला? नहीं, ये कोरमंगला वाला. हाँ. तो उधर भी ऑपरेशंस उधर ही क्या कि इनसाइड द स्टोर.
द वर्किंग कस्टमर इंटरेक्शन। तब उसके पहले किधर थे आप? मेरा ये दीघा। हाँ दीघा, मेरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दीघा में थे। बस तो उस उधर से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका जो वो जो आपका जो विलेज है उस उधर से स्टार्ट करते हैं। आपका जो फार्म था उधर आपका कैसे था, उसका तो मेमोरीज क्या है, और फिर सिटी में कैसे आए वो उधर से थोड़ा तो करते हैं। एक्चुअली सिटी तो बारे में पता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ। सिटी होता क्या है, क्योंकि गांव में पढ़ा लिखा तो खेती बाड़ी पापा के साथ। तो पापा जो थे वो हम लोग कारपेंटर थे। ओके। तो पापा के साथ थोड़ा बहुत कभी कभार छुट्टी मिलता है, संडे तो छुट्टी रहता है स्कूल टाइम में, तो पापा के साथ काम करने के लिए जाते थे हम लोग कभी कभार। नहीं तो घर में बैठ के पापा को हेल्प करना। तो उसके बाद 12 कंप्लीट करने का फिर से मेरा दिमाग में यही चलता था कि भैया मतलब बड़ा भाई जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखे किए हैं। BA कंप्लीट किया, हाँ BA कंप्लीट किए हैं। उसके बाद IIT में तो आपका पापा कारपेंटरी कर रहे थे और आप स्कूल के बाद उसके साथ हाँ हाथ जोड़ के हाँ मतलब छुट्टी का दिन में जैसे 11-12 का जो छुट्टी रहता है, बेसिकली हम लोग तो स्कूल तो बहुत कम जाते थे कि लीजर पीरियड वगैरह रहता था, तो सैटरडे संडे ही छुट्टी रहता था। तो उस टाइम पापा के साथ काम करना, भाई भी जाते थे। तो उधर लाइफ कैसा था आपका? बहुत लाइफ मतलब सिंपल था? सिंपल एंड नेचुरल था एक्चुअली। नेचुरल था, सिंपल एंड नेचुरल, जो तो गांव वाला जो फीलिंग रहता है दोस्त लोग के साथ मिलना जुलना कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, बस वो सब मस्ती करते हैं। मस्ती खेलना, मतलब खेलना उस टाइम तो मोबाइल तो था नहीं बेसिकली। तो घर में वही मम्मी बोलते थे जाके पढ़ाई करो, कि मम्मा आज तो एक दिन तो छुट्टी है ना, पापा आ जाएगा तो बहुत मार खाएगा। तो हम लोग साथ में शाम को 5-6 बजे तक खेलते रहते थे बैट बॉल क्रिकेट। तो बाद में वही पापा का डर के मारे दौड़ दौड़ के आ जाते थे कि चलो पापा आ जाएंगे अभी तो। तो पापा से बहुत डर था? हाँ डर मतलब वही तो मतलब प्यार वाला जो respect- फीलिंग, रेस्पेक्ट वाला प्यार नहीं, पापा कुछ बोल देंगे तो लग जाएगा दिल में, चलो। तो वो वाला फीलिंग था। तो शाम को पापा आने के बाद फिर से बैठ के साथ में चाय पीते रहते थे। उसके टाइम में पापा घर में भी काम करते थे, क्योंकि बाहर काम होने के बाद फिर से जो घर में रहता था दूसरे का ऑर्डर जो रहता था, जैसे क्या होता है कि बेड पूरा फिटिंग करना, तो पापा के साथ वो सब हेल्प करते थे, मम्मी भी हेल्प करते थे। तो उस टाइम उतना पता नहीं था कि बाहर क्या होता है। तो गांव में क्या रहता है कि चलो आज तो उधर चले गए थे, आज उधर घूमने के लिए चले गए। आपका गांव का नाम ही दीघा है ना? नहीं, गांव का नाम है बोड़ाई। बोड़ाई दीघा से कितना? दीघा से अराउंड 30 किलोमीटर। ठीक है, छोटा गांव है। छोटा गांव है। कितना लोग थे गांव में? गांव में ऑलमोस्ट तो लोग तो पता नहीं है, बट ऑलमोस्ट इस 500 एबो हाउस है। हाउसेस है, हाँ। ठीक है। तो कम्युनिटी था? हाँ। अच्छी तरह से फ्रेंड सर्कल हाँ था? फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि एक साथ में पढ़ाई लिखे किया था, तो मतलब बेच बाइस जो था वो मतलब बहुत बड़ा ही था हम लोग का। साइकिल में हम लोग दीघा जाते थे। 30 किलोमीटर? हाँ। कितना सा उम्र में ये सब? ये ऑलमोस्ट है 16-17। ओके। तो 18 में बाहर आ गया था, तो 16-17 में। तो उस टाइम में था मतलब एक था ना कि चलो बचपन का जो रहता है तो वाला फीलिंग। आजकल तो बाइक नहीं हो से जाएंगे नहीं, मार्केट में जाओ तो 200 मीटर 300 मीटर जाओ तो उस टाइम में भी बाइक चाहिए। और उस टाइम में ये था कि साइकिल में हम चलाते थे दीघा घूमने के लिए दोस्त के साथ। उधर थोड़ा लाइफ बहुत स्लो पेस्ड हाँ। रहता है, रिलैक्स्ड रहता है। तो जब तक आपका बाहर का नहीं पता चलता तभी भी पता नहीं चलता कि गांव क्या है या बाहर क्या है। तो जब तक बाहर नहीं आओगे तो फिर टाइम मुझे बाहर आने का मुझे सर में इसलिए चढ़ा हुआ था कि भाई पढ़ा लिखा ज़्यादा किया, तो भाई को एक बार पापा भेजते हैं रिसेप्शन में काम करने के लिए होटल में। पापा भेज दिया? हाँ। सुप्रियो को? भाई को। तो भाई बोला ठीक है मैं जाके देखता हूँ। तो भाई घूम के आ गए हैं। बोला कि ये सब काम मैं थोड़ी करूँगा इतना पढ़ाई लिखाई करके। तो उस टाइम एक माइंड सेट रहता है कि भाई ऐसे बोल रहे तो फिर से मेरा तो इधर ही स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। पापा बोले कि पढ़ लो और 3 साल कंप्लीट कर लो, उसके बाद उन्होंने कि नहीं मैं जाके बाहर जाके पढ़ाई कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से पापा बहुत मतलब क्या कि छोड़ना ही नहीं चाहते थे कि बाहर जाएगा ही नहीं लड़का। तो फिर से अंकल थे वो भी बेंगलोर में रहते हैं, आज 30 ईयर्स से बेंगलोर में रहते हैं। ओके। तो उनके साथ तो पापा एक ही चीज़ बोले वो क्या काम वो होटल में अभी भी होटल? हाँ सरजापुर में ही रहते हैं अंकल। तो उनका भरोसे में छोड़े, बोले कि देख लो तुम्हारे भरोसे में छोड़ रहा हूँ, कुछ ना हो बस। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वही था कि घर छोड़ के जो बाहर आते हैं उसके बाद लगता है कि शायद दुनिया छोड़ दी हम लोग। बहुत अब आपका जब आप घर छोड़ के वो प्लान था कि आने के लिए, हाँ। वो था वो बहुत
क्या फीलिंग था? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर था या कुछ हाँ नया मतलब उस टाइम में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया जाननी था, उसके बाद पापा को देखते थे कि कितना मेहनत करने के बाद फिर से वही है कि उनका एक ही था कि दोनों बच्चे लोग मम्मी को हर टाइम खुश देखना है। तो पापा का वही मेंटल था कि छोड़ना नहीं है, गांव में ही रहो, गांव में कुछ करो, नहीं तो पढ़ाई करो। पापा का वही था कि पढ़ाई करो, उसका देखा जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। गांव में था अपॉर्चुनिटीज कुछ करने के लिए? नहीं गांव में नहीं रहता है, वही मतलब फार्मा छोड़ के और दूसरा कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ करो स्पेशल, कि गांव में उतना ज़्यादा अभी क्या कि जो 10 साल पहले था और अभी जो है, अभी तो कंपटीशन मार्केट सब जगह में है। गांव में जहाँ पर 10 ही दुकान था, आज का दिन में देखने के लिए जाओ तो मार्केट में भरा हुआ है। अभी गांव में बहुत दुकान है। हाँ तब जब आप 2015 के पहले था उधर बहुत अभी तो बहुत फैसिलिटीज बहुत कम था। हाँ बहुत कम था। रोड्स थे अच्छे तरह रोड्स थे या कच्चा रोड्स थे? कच्चा रोड्स था। अब घर जाने के लिए हम लोग को साइकिल को कांधे में लेके जाना पड़ता था बारिश हो गया तो। ओके। ये बिजली सभी आता था? हाँ बिजली से भी आता था। ओके। पानी टनी, हाँ क्योंकि पानी तो घर में ही, मतलब जो ट्यूबवेल होता है, मतलब हाथ में मारना है। हाँ हैंड पंप वाला था। तो हैंड पंप तो घर में ही है। तो सब दिक्कत नहीं था। तो वही मतलब कि कनेक्शन का बहुत डिस्कनेक्टेड था कनेक्शन का, कि उधर जाओ कलकत्ता जाने के लिए पहले हम लोग को कितना अर्ली घूम के देखने के लिए तो 4 या 5 बस मिलता था। 4 बस चेंज करना था? नहीं 4 बस ही मिलता था, मतलब पूरा एंटायर डे में आपको कलकत्ता जाना है तो। और आज का दिन में आपको नाइट में आपको मिल जाता है 5 से 6 बस, मॉर्निंग में मिल जाता है 3 से 4 बस मिल जाता है। तो सब अपॉर्चुनिटी अभी हुआ है रिसेंटली, 3-4 साल पहले से स्टार्ट हुआ ये सब चीज़। आज जब आप गांव में थे, हाँ तो आपका फैमिली खेती भी करता था या आपका सिर्फ कारपेंट्री में था? नहीं पापा कारपेंट्री करते थे, तो उधर मजदूर रहता था जो इसका खेतिया काम करता था, तो उनके साथ जाके हाथ बटाना। नहीं तो कभी क्या होता तो जब खेती होता है तभी क्या कि उन लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, कि 2 टाइम का खाना खिलाना, मतलब लंच का और आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। तो लंच का मतलब ब्रेकफास्ट का वही मैं पहले स्कूल से ट्यूशन से आता था, जो मॉर्निंग ट्यूशन होता है, तो वो जाता था, वो जाके फिर से ख़त्म करके आके मैं खाना लेके जाता था। नहीं तो कभी कभार भाई लेके जाते थे, खाना दे के आके फिर से जाना है स्कूल, तो स्कूल ख़त्म करके आके फिर से वो लोग रहता है तो ठीक है, नहीं तो वो लोग चला जाता है। तो स्कूल में मस्ती था, पढ़ाई सब? स्कूल हाँ बहुत मस्ती था। वो सीखने का मजा था आपका भाई का? हाँ मेरे से तो बहुत गुना अच्छा है भाई पढ़ाई लिखाई में कंपेयर टू मी। हाँ तो अभी आप दोनों अच्छे कर रहे हैं, वो खुशी है मेरे देखने में। और आपका जो ये था आपका जो उस टाइम का मेमोरीज है, फॉन्ड मेमोरीज जो है आपको, जब गांव से शहर आया, आपको शहर में अच्छा अपॉर्चुनिटीज है वो सभी आपका माइंड में था ना? अभी जो है शहर, आपको फिर से गांव जाने का मन लगता है कभी कभार? हाँ कभी कभार लगता है, जब कि चलो जब घर का याद आता है तभी तो लगता है कि भाई काम छोड़ के भाग जाए उधर ही कुछ कर लेते हैं। जब घर मेंटेनेंस करने का बाद आ जाए तभी लगता है कि नहीं भाई रुक जाते हैं ना, नहीं होगा गांव में इतना कमाई नहीं हो पाएगा। अब मेंटेन मतलब एक क्या रहता है कि जैसे पहले हम लेते थे, ठीक है एक कपड़ा लिए कि भाई चल रहा है तो चलने दो। हाँ आज का दिन में जो मेंटेलिटी चेंज हुआ है, एक कपड़ा है तो फिर से और एक ले लेते हैं ठीक है तो अच्छा दिखना है अभी। हाँ बस ठीक है। तो कंपेयर टू कि पहले जो मैं बेंगलोर आया था 2013 में, आई भी याद है कि मेरा दोस्त का सैलरी मिलता था 7,100 7,100 जब कौन से 2013 में? हाँ क्योंकि तो ही ज्वाइन ये 2013 जनवरी। हाँ तो वो उनको मिलता था 7,100। तो व्हेन आई हैव जॉइंड कि 2013 ऑन दिसंबर, तो आई गॉट मोर सैलरी। Then he feel jealousy. He complained to the manager, why he getting ये नेचर बास्केट में ठीक है। तो उस टाइम में लगता कि उस टाइम में क्या है कि
घर भेजता था कभी कभार 3,000-4,000 रुपया, और 3,000 रुपये में खर्चा ऐसे निकल जाता था कि रूम का खर्चा, खाने का, और एक मोबाइल का रिचार्ज। और आज का दिन में 7,000 सोच निकला तो 7,000 में कुछ भी नहीं आता है। अभी तो बहुत महंगा हो गया पूरा। बहुत महंगा कंपेयर टू उस टाइम में, और अभी का तो बहुत डिफरेंट है। मेरे एक ऑब्जर्वेशन पहले से है कि आप बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो। ऐसे ही नहीं कि कोई भी काम दे दो, आप फिगर आउट कर लेते कि कैसे करना है। जुगाड़ भी करना है या सीधा साधा करना है, आप फिगर आउट कर लेते हैं। ये क्वालिटी आपको बचपन से, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो बिल्ड हुआ है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि खेती में हेल्प कर रहे थे, कारपेंट्री में हेल्प कर रहे थे। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस में आप ये सीख लिया कि कोई भी काम दिया हम लेके जाएंगे, करेंगे। ऐसे कैसे ये हुआ था? मतलब पहले से जिस टाइम बाहर आने का सोच रहा था कि ओके लेट्स कम आउट फ्रॉम द ये वेस्ट बंगाल, लेट्स गो आउटसाइड, तो उस टाइम में एक ही माइंड रहता था कि भाई जो भी काम हो कर लेते हैं, जो भी काम हो, और छोटा बड़ा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी सपोज आपके सामने कुछ है कि आपको करना ही है, आपको करना भी कैसे करके एंड ऑफ द डे वो क्लोज करना ही है, क्योंकि आपके वजह से दूसरे को ना सुनना पड़े। क्योंकि अभी क्या देखो, आई भी होता है, वो वाला फील आई भी होता है कि कुछ हम लोग मिस कर जाते हैं, तो दूसरा कोई ट्रैवल होता है उसके लिए कि भाई यार, बाद में कल का ही बात बोल रहा हूँ, कल का रीसेंट एक्सपीरियंस बताइए। तो दैट ऑटोमेशन थिंग्स, बोलिए। ओके, ऑटोमेशन, यस, MIS ऑटोमेशन। ओके, फॉर अस ओनली दैट गाय इज कॉल्ड गौतम। हाँ, he connect with me till 1:30 AM, मतलब in the midnight morning. yes, okay, and he is working for us only. Gautam is from that automation guys team. He's from the development team. I think so, because I Okay. am also not sure about it. Okay. तो वो हम लोग के लिए वो जागे हुए रात में। क्यों? Why? Because we are not doing proper thing from our end. क्योंकि वो हम लोग अच्छा से कर लेते, तो उनको एक 1:30 को जागना नहीं पड़ता ना, मुझे जागना पड़ता है दूसरा किसी की वजह से। तो वो वाला चीज़ है, क्योंकि पहले से था कि माइंड में कि भाई कुछ भी है कर लेंगे, कुछ भी है कर लेंगे। जिस टाइम मैं बाहर आया था 2013 में, ये मेरा माइंड से था। मेरा काम एक्चुअली तो 2013 में जब अंकल पापा को बोले कि मैं लेके जा रहा हूँ, पापा बोले कि ठीक है लेके जाओ, आराम से रखना। तो मेरा क्या आराम से रखना है? मतलब कभी तो घर को छोड़ तो नहीं आए हैं। हाँ। 2018 मतलब 2018 नहीं, मेरा जब 18 साल था, हाँ। उस टाइम मैं घर छोड़ा था एक्चुअली। घर छोड़ के मैं बेंगलोर आया था। तो उस टाइम में मेरा एक्चुअली जो काम का जो डिसाइड हुआ था, तो मेरा हाउसकीपिंग का डिसाइड हुआ था। हाउसकीपिंग? हाँ, किधर? होटल में। okay. हाँ, तो होटल में हाउसकीपिंग क्या होता है वो मुझे पता नहीं था। मुझे हाँ। इतना पता था कि घर क्लीन करना रहता है। ओके, ठीक है, तो घर क्लीन करना आता है, ठीक है। तो बाद में मैं कि स्कूल टाइम से ही मेरा कंप्यूटर का जो ऑलमोस्ट डिप्लोमा का जो कोर्स है उसका ऑलरेडी आधा तो कंप्लीट था। आपका पढ़ाई कुछ और था, काम जो मिला बेंगलुरु में कुछ कंप्लीटली डिफरेंट। तो पढ़ाई था आपका 12th तक किया? 12th उसके कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। कंप्यूटर डिप्लोमा तो थोड़ा बहुत कम। तो आपका पूरा लैपटॉप का एक्सेल, पावर पॉइंट सभी आता था आपको? हाँ, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई मतलब सिखाते थे, तो उस टाइम में तो थोड़ा बहुत तो आता था, जो कि हम लोग जो रेगुलर एंट्री करते हैं बेसिकली। हाँ, अकाउंट सभी। हाँ, वो सब आता था, तो वो आके मैं सीखा नेक्स्ट अप ये इसमें गोदरेज में। ठीक है, और पढ़ाई वो डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा क्या सिखाते हैं वो? जैसे स्कूल टाइम में क्या था, उसका कोर्स रहता है, मतलब गांव में ही एक ये आपका आउटलेट टाइप का रहता है जहाँ पर सिखाते रहते हैं। तो उधर एडवांस एक्सेल तो उस टाइम में था नहीं, 2010 में। हाँ। तो ऑलमोस्ट उस टाइम में नहीं था, तो एक्सेल सिखाते थे जो नॉर्मल, उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद वर्ड्स का। तो सौरभ, आपने बोल रहा था कि आप कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सीखे थे जब आप विलेज गांव में थे और फिर सिटी में आए, वो बहुत यूजफुल हुआ। क्या है वो? थोड़ा स्टोरी से बता सकते हैं तो? स्टोरी तो अभी क्या कि जिस टाइम मैं 4th क्लास में पढ़ रहा था, उस टाइम में पापा को बोला कि आई वांट दिस मीन्स दिस, आई वांट 1 बैग ऑन 4th क्लास, 1 बैग, स्कूल बैग एंड फुल पैंट एंड शर्ट, फुल शर्ट। So that point of time, other guys I think never used that.
तुम वो किसी को देख के आपको पसंद आया कि हाँ मुझको भी ऐसे चाहिए, या कैसे आया वो सभी? नहीं एक्चुअली तभी तो अभी बचपन ट्रेंड था कुछ? नहीं फ्रेंड ट्रेंड कुछ नहीं था, जस्ट एक्साइटेड था कि मुझे फुल पैंट ही पहनना है। सब कोई हाफ पैंट पहन रहा है, मैं क्यों हाफ पैंट पहनूं? हाँ। सब कोई टी शर्ट पहनना है, मैं टी शर्ट क्यों पहनूं? मैं शर्ट पहनना है। सब कोई हाथ में बैग लेके जा रहा है, मैं हाथ में बैग लेके मैं कंधे में लेके जाऊंगा। तो आई हैव दैट माइंड सेट, ओके। देन आई हैव इन्फॉर्म माय फादर कि आई वांट दिस, मीन्स आई वांट दिस। देन मम्मी बोले कि तुम पता है पापा के पास पैसा नहीं है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तो मम्मी को बोला मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा ये मुझे नहीं मिला तो पापा नेक्स्ट डे पापा ला के दिए मुझे कि ये लो और स्कूल जाओ। तो मैं जाना स्टार्ट किया। तो फिर से जब सब कुछ खत्म होने के आफ्टर 12th व्हेन आई कम आउट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, देन आई कम आउट, आई हैव जॉइन इन द वर्क इज गोल्डन नेचर बास्केट। तो उस टाइम मेरा सैलरी था 7,000 रुपीज़, 7,300 रुपीज़। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मंथ काम करने के बाद 7,300 मिल रहा है। वो भी इससे बात सुनो, मैनेजर से 2 बात सुनो, उसके बाद कुछ काम गलत करते हो तो वो भी सुनाते हैं। तो बाद में उस टाइम रियलाइज हुआ कि पैसा जो कमाना होता है वो इतना इजी नहीं होता है। पापा के पास उस टाइम में तो मुझे पता नहीं चला कि पापा के पास पैसा नहीं है, मगर मेरा मेंटालिटी वही था, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि चलो पापा कितना मेहनत करके काम कर रहे हैं हम लोग का खुश रखने के लिए। कभी भी वो उनका लाइफ में कभी हैप्पीनेस शायद नहीं देखे हैं, सिर्फ बच्चे की वजह से या फैमिली की वजह से। खुद का कुछ किया ही नहीं कि चलो बच्चे लोग खुश है ना, उसमें हम खुश हैं। हम लोग पापा के पास चप्पल नहीं रहता है, मतलब टूटा हुआ चप्पल यूज करते हैं। और उस टाइम में हम लोग पास जूता रहता है, हम लोग को बूट चाहिए रहता है, हम लोग को लेदर का चप्पल चाहिए रहता है। तो भैया जो है भैया ये वाला क्या कभी भी पापा को फोर्स नहीं किया ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, क्योंकि पापा भैया थोड़ा उस टाइम में समझदार थे या समझते थे ये सब चीज़ को। तो उस टाइम मैं नहीं समझता था कि चलो नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो ये वाला मतलब तो ये रियलाइजेशन होने के बाद क्या चेंजेस हुआ आपका लाइफ में, और क्या आपने? तो चेंजेस वही हुआ कि जितना कमाता था तो ट्राई करता था कि इतना घर भेज दूं कि सपोज 7,000 है तो खाना पीना लेके उस टाइम में 3,000 में हो जाता था। तो 4,000 में ये को भेज देता, पापा को भेज देता था कि चलो इस महीने 4,000 रुपीज़ है वो भेज दे रहा हूँ। नहीं तो ये उस टाइम में घर में एक ही मोबाइल था, भाई के पास एक था, तो भाई छुपा के लिए थे पापा से। तो उस टाइम कभी का भाई का रिचार्ज कर देता था बिना बताए। तो सब था कि चलो कि छोटा छोटा 1 रुपया भी बहुत महीना लगता है लाइफ के लिए। तो तब से नेचर बास्केट से जो आप शुरू किए, तो अभी आप ग्रोथ किए हैं ना, अभी नेक्स्ट अप में स्मार्ट क्यू में। तो कैसा लग रहा है कि, और क्या फ्यूचर में क्या देख रहे हो आप खुद का, और आपका ग्रोथ कैसे हुआ है, क्या उसके बारे में थोड़ा? नेक्स्ट अप तो पहले स्टोरी बताता हूँ, जो भाई का इंटरव्यू था एक्चुअली। तो भाई का इंटरव्यू जो था वो एक्चुअली मैंने बोलने के लिए तो इंटरव्यू में ही क्रैक किया था भाई का इंटरव्यू। क्योंकि केशव सर डोंट नो दैट मच ऑफ हिंदी एंड माय ब्रदर्स डोंट नो दैट मच ऑफ इंग्लिश, देन आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। यू आर द ट्रांसलेटर? यस, ट्रांसलेटर लाइक। देन आफ्टर फिनिश द ये इंटरव्यू, केशव सर एंड बोथ कम डाउन for the tea. Then I asked my brother to be here only, I'll just come back in 2 minutes. Then we just come out for the tea coffee. Then Kasam sir asking me, when you are coming to join the next stop? That is really miracle for me. कि मैं भाई का इंटरव्यू देने के लिए आया था, बस लग रहा कि मेरा ही इंटरव्यू हो गया है अभी तो। दोनों का साथ में दोनों का एक साथ में इंटरव्यू। तो फाइनली उसका 3 मंथ के बाद हम लोग कितना कॉन्वर्जेशन किए, कैसे सर भी बोले। तो उस टाइम मुझे गिव अप भी मिला था कि सर इतना तो अभी तो 1 मंथ तो मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना है। तो कैसे सर बोले 15 डेज का छोड़ दो, मैं सैलरी दे दूंगा इधर से। एक्स्ट्रा सैलरी शायद मुझे मिला था उस टाइम में कि 15 डेज का जो सैलरी होता है वो भी मुझे मिला था नोटिस पीरियड का। तो ज्वाइन करने के बाद पहले जो नेक्स्ट स्टाफ था उस टाइम में शायद हम लोग गिन के इज अराउंड 10 और 11 एम्प्लॉय मैक्सिमम। तो वी आर अर्लियर वॉक अप अराउंड 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग, and we'll go back to home again is around midnight 1 o'clock, and it is with Keshav sir only. So one of the client like Fast America, we are working like a 23 hours, someday we are done 24 hours of work. Keshav sir also with me,
वी आर रियली एक्साइटेड दैट टाइम कि ओके चलो कैसा सर आल्सो इज देयर, मतलब एज ए सीईओ आई डोंट थिंक सो कि सो एज ए सीईओ इज लाइक ए कि वी आर ऑल द एम्प्लॉयज ऑल टुगेदर, कि लाइक ए फैमिली टाइप का था, जो कि अभी भी है। यही अच्छा लगता है स्मार्ट क्यू में कि हम साथ में काम करते हैं, ये तेरा ये मेरा कुछ नहीं है, कि सब अपना ही है। वही फीलिंग अभी भी आप अभी भी करते है, हैं। हाँ अभी भी है कि बहुत रेयर कंपनी में था, क्योंकि रेयर कंपनी आफ्टर लॉकडाउन आई हैव जॉइंड वन कंपनी कॉल आर्कोलैब। लॉकडाउन में क्या हुआ, वो इंटरेस्टिंग चीज है आपका जो लॉकडाउन में प्रॉब्लम और क्या कैसे पूरा उस टाइम बहुत बिजनेस जीरो हो गया और हाँ। कैसे आप स्ट्रगल किए, उसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, वो पूछना चाहते हो। तो क्या हुआ लॉकडाउन के बाद? डेफिनेटली हमको बिजनेस नहीं था और हाँ। हमने वॉलेंट्री सैलरी डिडक्शन के लिए वो इनिशिएटिव हुआ। उसके बाद क्या हुआ आपको? हम ऑल्सो कंपनी से ये प्रॉमिस किए थे कि आप दूसरे जॉब ढूंढना है तो भी आप ढूंढ सकते हो, काम कर सकते हो, बट लॉकडाउन स्टॉप होने के बाद वापस हम आपको आना ही है, ले लेंगे आपको हमारा ये जब तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जब पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है तभी यही मेंटालिटी था, ठीक है चलो एक मंथ का रहेगा, चलो घर से घूम के आते हैं। तो हम लोग प्लान किए थे, सिर्फ 1.5 डेज में हम लोग प्लान किए, मतलब माई एल्डर ब्रदर एंड मी। तो वी हैव ए स्कूटी कॉल डियो, होंडा डियो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट किए मिडनाइट इज अराउंड फ्राइडे मिडनाइट अराउंड 3 o'clock, मतलब अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock बेंगलोर से डियो में होंडा डियो में। किधर तक? वेस्ट बंगाल तक। डियो में दो लोग भाई और मैं। तो भाई बोले चलो निकल चलते हैं। तो भाई ये बहुत एडवेंचर है। तो भाई के लिए ये फास्ट लॉन्ग ड्राइव था, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा लॉन्ग ड्राइव था। बट उसके पहले मैं बहुत सारा लॉन्ग ड्राइव कर चुका हूँ कि 600 किलोमीटर्स 800 किलोमीटर्स विद द फ्रेंड्स, वी हैव डन दैट, बट फॉर माय ब्रदर इट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो हम लोग स्टार्ट किए फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग, सैटरडे को था। तो बाद में हम लोग बहुत जगह में, मतलब तमिलनाडु बॉर्डर में रुके, उसके बाद उड़ीसा बॉर्डर में हम लोग। आपको ट्रैवल बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए आसान था क्या? क्योंकि पूरा बहुत रिस्ट्रिक्ट था, बट जो पुलिस लोग था तो उतना वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि देखा था कि कर्नाटका मतलब के का नंबर प्लेट है और वी हैव ऑल द मतलब लगेज एवरीथिंग। तो वो लोग इसलिए इतना स्टॉप नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह में जो कि तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो दैट टाइम वन पुलिस हैज स्टॉप अस कि वेयर यू गाइस गोइंग, वी आर गोइंग टू वेस्ट बंगाल फ्रॉम कर्नाटका। बोला ओके इट इज टू फार राइट, एंड इट इज ऑलमोस्ट 1275 1250 किलोमीटर्स। तो ओके गो स्लोली, टेक केयर, देन वी गो। देन एक दिन तो हम लोग रेस्ट लिए थे, एक होटल बुक किए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को होटल वगैरह नहीं मिला था, तो हम लोग ढाबा में ही रुके थे। ओवरनाइट नॉट स्लीपिंग, इट इज फॉर द 1 and 2 hours स्लीप ऑफ लाइक दैट। ओके, तो बाद में उधर से निकले तो फाइनली हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं। कितना दिन लगा? 2.5 days के बाद। 2.5 days। तो 2 days फुल्ली लगा था, तो हाफ डे मतलब इज अराउंड 10 o'clock। नेक्स्ट डे आफ्टर 2 days इज अर्ली मॉर्निंग इज अराउंड 10-11 o'clock वी हैव रीच आवर होम। देन माय मॉम आल्सो इट इज ऑन शॉक कि हाउ विल गाइस रीच, कि तो गांव में तो पता है ना मम्मी लोग का वही रहता है कि चलो भगवान है बोल के तुम लोग तो पहुंच गया आके। तो वही था, तो हम लोग बताया नहीं था किसी को, क्योंकि मम्मी हर टाइम कॉल में रहते और रात में नहीं सोते, ये तो 100% था। तो इसलिए हम लोग किसी को नहीं बताया, हम लोग निकल गए। तो मम्मी को पहले पता चल गया कि मेरा दोस्त, मेरा जो रूममेट था, तो वो बता दिए थे कि वो लोग तो निकल गया ऑलरेडी, ये 2 दिन, हाँ 2 दिन हो गया ना, बताया नहीं कुछ नहीं। तो फाइनली कि 1.5 years के बाद जब लॉकडाउन में थे, तभी ये थैंकफुल था कि ऐसे कंपनी है कि जो कि लॉकडाउन में भी बैठा के सैलरी दिए हैं। इट इज़ रियली ग्रेटफुल फॉर अस एक्चुअली, कि जब भी सुनता हूँ कि इतना बड़ा जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो एम्प्लॉय को सब निकाल दिए थे, मगर नेक्स्ट स्टेप था कि जो कि हम लोग को सैलरी पे किए थे कि चलो कि इतना तो मैनेज हो जाएगा। तो कैसे ये हार्दिक साथ थे कॉल में कि सौरभ इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो अच्छा लगा कि तो चलो कम दे रहे तो भी मतलब ये तो है कि कुछ तो मिल रहा है।
घर चलाने के लिए, क्योंकि घर चलाने के लिए भाई और मैं ही थे दोनों, कि और कोई था नहीं कि फैमिली सपोर्ट करने के लिए। तो उस टाइम हम लोग मैनेज किए। तो बाद में 1.5 साल तो ऐसे ही, मतलब बहुत, तो कि सैड स्टोरी जो बोलता है कि लाइफ में कुछ सीखना था तो ऐसा ही है कि पैसा बचा के रखो भाई। सेविंग्स नहीं था। सेविंग नहीं तो कुछ नहीं है। और किस्मत है, सेविंग था, मम्मी रखे थे, क्योंकि दोनों के भाई का जो सैलरी था तो हर मंथ में हम लोग भेजते हैं, तो बहुत सेविंग करके रखे थे मम्मी बोल के। तो 1.5 ईयर्स हो तो कैसे करके निकला अच्छा से, कि कोई दिक्कत नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। तो एक ही टेंशन था कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे। तो फिर से उधर ख़त्म करके फिर से मेरा दोस्त से कॉल गया कि चलो एक कंपनी में जॉब है, आ जाओगे। तो पीपीटी का काम था जो। ओके। तो मैं ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो मैं पहले आके सुबैन को कॉल किया, सुबैन बाग। हाँ, तो उनको कॉल किया, मतलब कि मैं ऐसे कुछ काम है क्या, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो एक ही चीज़ बोला कि एक काम करो, तुम 6 मंथ के लिए एक जगह में काम ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद जिस टाइम कॉल जाएगा तो उस टाइम में आके रिज्वाइन करना ही है तुमको। तो उस टाइम में मतलब ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उधर 6 मंथ का फिर से ये सुबैंदा कॉल गया है कि चलो मार्च से जाके ज्वाइन करो। तो उस टाइम थोड़ा सा बहस हुआ सुबैंदा के साथ। तो उस टाइम में हार्दिक सर भी लाइन में थे। कि सर क्या हुआ है, थोड़ा कम में ज्वाइन कर लो, उसके बाद आके बढ़ा देंगे ना 3 मंथ के बाद। नहीं सर, मुझे इधर जो चाहिए मुझे वही चाहिए, क्योंकि पहले से आप लोग सैलरी नहीं बढ़ाए मेरा। तो ये थोड़ा डिस्कशन था मेरा। आपका डिमांड था, फिर से 4th स्टैंडर्ड वाला डिमांड था। और वाला डिमांड था, क्योंकि जिस टाइम में सैलरी इंक्रीमेंट होना था, प्रमोशन होना था, उस टाइम में लॉकडाउन हो गया था। तो फॉर दैट ओनली आई एम डिमांडिंग टू हार्दिक सर कि सर मुझे ये चाहिए तो चाहिए सर, आप ट्रांसफर देखो, क्योंकि बाइक का भी पेट्रोल का भी रहता है, मतलब कि ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये दे दीजिए बस, चलेगा सर। तो बाद में सुबह तो कैसे एग्री कर दिए हैं, कल ठीक है आके ज्वाइन कर लो। फिर ये भी हुआ होगा कि आपका रोल भी थोड़ा ज्यादा कर लिया होगा, क्योंकि आप हाँ, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ऐसे हम जब सैलरी भी हम इंक्रीज करते हैं ना, पहले वही देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर सकते हैं, किधर वो उसका टैलेंट कहाँ पर है। क्योंकि ये तो देखो सपोर्टिव है, ये नहीं बोलूँगा कि सपोर्टिव नहीं है। तो आने का भी फिर से ऑपरेशन टीम में ज्वाइन किया। उसके बाद एक लोलापुलूजा बोल के एक इवेंट था जो कि मुंबई में था, विद स्पॉन्सर था ये। आप आए थे? हाँ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आप थे? हाँ, फर्स्ट वाला मैं था। मैं भी आया था। हाँ, आप भी आए थे। हाँ, मैं भी आया था। तो होने के बाद फिर से मुझे ऑफर दे के, मतलब वर्षा, जो कि मैं थैंकफुल उनको भी करता हूँ कि काम देखने के बाद फिर से वो सुबैन से बात किए, बोले कि सौरभ को दे दो ना मेरा टीम में। तो मुझे पता भी नहीं था कि अंदर से ऑलरेडी बात हो चुका है। तो सुबैन आके बोलते उनके साथ काम करने की दिक्कत है। मुझे तो काम से मतलब है, किधर भी काम करो, काम अच्छा करना है, बस काम करना है। तो ठीक है। तो ये वर्षा भी आके बात किए कि सौरभ कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझे शौक लगा था कि चलो। तो मुझे खुद का वो डाउट था ये कि ऐसा क्या था कि मैं आके इवेंट्स टीम में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि उस टाइम में हम लोग साथ में काम किए थे लोलापुलूजा में। वर्षा कुछ मतलब इधर बेंगलोर कुछ मैनेज करने के लिए वो रिटर्न आ गए थे। तो आपका अभी रोल का डेजिग्नेशन क्या है? एज ए इवेंट मैनेजर। आप इसके पहले RM के? नहीं, मैं ऐसा ही था, सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से इवेंट मैनेजर। हाँ, अभी इवेंट मैनेजर। तो अभी कुछ लगता है आपका ग्रोथ? बहुत अच्छा लगता है अभी के, मतलब कंपेयर टू पहले का अभी तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और फ्यूचर में आप क्या look forward, what are you looking forward in the future, and how do you want to growth करने के लिए क्या देख रहे हैं आप आगे में? आगे तो ये तो मेंटालिटी है कि एक पहले से जो बॉन्डिंग बना हुआ है स्मार्ट क्यू के साथ, तो यही लगता है कि इधर ही काम करके इधर ही ग्रो करना है। जो अभी तक हुआ है तो ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड 8 years, तो इट इज मोर देन 9 years इट इज रनिंग राइट नाउ। ऑलमोस्ट स्मार्ट क्यू का एज है आपका इधर का टेन्योर। ठीक है। तो ये तो ग्रो का जो बोलने के लिए जाओ, तो पहले जो था अभी का जो अपॉर्चुनिटी बहुत तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले हम लोग बहुत छोटा थे, अभी बड़ा होने के बाद फिर से वही लगता है कि चलो फिर से ये पोजीशन है तो मुझे नेक्स्ट ईयर में मुझे इधर जाना है। तो एक मेंटालिटी रहता है, तो वही भी मेरा भी थॉट वही है कि चलो लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। एंड हु आर द पीपल you look up to or you're thankful for Thankful I know you already thanked me, you don't need yes. to, but others it'll be great to hear their names.
one Hardik sir, thankful, and Subayan. For what did they like few words on what they जैसे हार्दिक सर एक ही चीज बोलते हैं, सौरभ हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट टाइम में थे, हम लोग बैठते थे रात में 3 बजे तक मेनू बैठने के लिए, तो एक ही चीज, सौरभ टेंशन क्यों ले रहा है, हो जाएगा, चिल करो। ठीक है, एक ही चीज था। तो उनका यही चीज है कि लेट्स गो, हो जाएगा, चलो कुछ भी करो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुबाइंदा के साथ तो झगड़ा तो होता रहता है। इट इज टू फ्रैंक, क्योंकि वो हेल्दी झगड़ा है। हाँ, हेल्दी मतलब वही थोड़ा छुट्टी को लेकर थोड़ा सा हम लोग का हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी आप भी उनका जगह मैं भी रहूंगा कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि वो क्या होता है, बड़न मजलता है। वो एक ही चीज बोलते हैं कि जाओ, एक हफ्ते में जाके घूम के आ जाओ, तो वो वाला चीज़। बट उनसे क्या है कि जो शांत स्वभाव वाला जो चीज़ है ना, उनका मुंह में अभी तक तो मैं देखा नहीं कि ऊंचा आवाज से बात करते हुए। ये ग्रेट लगता है कि चलो इतना तो मेंटली प्रेशर रहने के बाद वो कभी ऊंचा आवाज में बात नहीं किया किससे। हम्बल है, फ्रेंडली। हाँ, ठीक है। कभी तो मैं एक बार चिल्ला दिया था छुट्टी के लिए लेके, मैं तो बोल दिया, पर मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं आपको अप्रूव थोड़ी पूछ रहा हूँ। और बोलते अप्रूव नहीं चाहिए ना, जा अभी जा। मुझे बात ही नहीं करना तुमसे। ठीक है, यही इंसिडेंट था, बट बहुत अच्छा था। तो अभी जो है कि मेरा जो रिपोर्टिंग मैनेजर एज ए सपोर्टिव, बहुत मतलब वर्षा, मैं तो उनको अभी भी मैं एज ए मैनेजर, एज ए लाइक ए फ्रेंड, मतलब बहुत रेयर शायद ऐसे मैनेजर आपको मिलता होगा कि ऐसे मिलजुल के रहते हैं। कोई भी जगह में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, और कभी सोचते नहीं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं क्यों करूँ। घूम फिर के वो एक ही चीज बोलते कि जो नहीं हो रहा है मुझे बताओ ना, आके डिस्कस करो, नहीं होता है तो। बट ऐसे मैनेजर बहुत रेयर मिलता है आपको। मैं तो बोलूँगा कि थैंक यू सो मच वर्षा कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि चलो सौरभ को दे दो मेरा टीम में, वो कर लेगा, ये सब चीज़ करता है। आई भी वही चीज़, ट्रस्ट है आपके ऊपर और भरोसा है, तो मैं भी सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे भी लगता है कि चलो ये तो वो तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा ही, कि उनका जो ट्रस्ट है। तो क्योंकि कभी कभी लाइफ में अप एंड डाउन रहता है कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, कल वो होगा, शायद हो सकता है। तो ये सब सोच के तो उधर तो नहीं रुकना है, कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो वो बिल्ड ऐसे ही मेंटेन करो कि भाई कभी का डाउन होता है, बट उतना ज़्यादा डाउन में भी मत दो कि कोई आके पूछ ले। जो ये सपोर्ट कर रहा है उनको कोई बोल दे कि भाई ये क्या कर रहा है, तुम तो इतना बड़ा बात किया था, बात क्या होता है। बट मैं बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, for the entire team, again Hardik sir, Subayan, Kashyap sir from beginning, then Varsha right now. Amazing to hear your story. You have something more to say and something और कुछ बोल रहे थे? और कुछ मतलब कि वही चीज़ है, लगता है कि एंड ऑफ द डे शायद मेरा ये लास्ट कंपनी हो, कि और दूसरी जगह मैं काम ना करूं। मेरा ये फीलिंग रहता है, हर टाइम रहता है। जैसे लॉकडाउन की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, मुझे एक ही चीज़ बोले थे कि सौरभ तुम लोग को तो आके ज्वाइन करना ही है। कि बहुत रेयर कंपनी में होता है कि आपको बुला के लॉकडाउन के बाद फिर से बुला के कि फिर से रिज्वाइन करो, और कम सैलरी हो सकता है, दैट इज़ नॉट मैटर, बट यू हैव बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप, यू हैव डन दैट वर्क कि ओके भाई सौरभ कर सकता है, नहीं तो सुप्रियो कर सकता है, नहीं तो अदर भी एम्प्लॉय, जैसे संदीप हो गया, तो बहुत सारा जो संजय हो गया, तो कोई है कि लॉकडाउन के बाद भी हम लोग आके ज्वाइन किए, बिकॉज ऑफ द कंपनी कल्चर, की कंपनी फ्रेंडली है, कि वो लोग देखते हैं कि भाई ये बंदे लोग कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरा कंपनी में है। जैसे मैं, क्योंकि मेरा ये सेकंड कंपनी है मेरा लाइफ में। जैसे गोदरेज था, तो गोदरेज मेरा मैनेजर ऐसे सपोर्टिव था, वो मुझे 15 डेज में रिलीज़ किया था, जो मुझे अभी सुबह से भी मिलता है कभी का मतलब क्योंकि उतना ज़्यादा तो क्लोज तो नहीं रहते हैं जैसे वर्षा है, तो मुझे बहुत सपोर्टिव लगता है। थैंक्सफुल टू एंटायर टीम एंड आई एम रियली एक्साइटेड, दिस इज माई फर्स्ट episode, I think so. Yes, and thank you so much. Many more in the future. Congratulations and all the best, and thank you Saurabh for sticking with us. Thank you so much sir, and really putting all the effort and grow. I mean, listening, being open to all the feedback, being open to basically आप से जो वो क्वालिटी है ना कि हाँ करते हैं, वो एटीट्यूड सब में नहीं मिलता। Few people have that. एक ही चीज है, thank you for that, कि थोड़ा तो एंगरनेस ज्यादा है। I agree वो सीख लेगा वो। बट बी फ्रैंक कि चलो भाई नहीं करना है, तो मैं कह रहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता ये वाला चीज़।
कि मैं डायरेक्ट मुंह में बोल देता हूँ कि भाई नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचता नहीं हूँ कि भाई नहीं हो पाएगा, मैं किसी को घुमाऊंगा कि भाई 2 मिनट के करके दूंगा, उसके फिर से बोलूँगा कि भाई आधा घंटे का कर दूँ। जो नहीं होता मैं बोल देता हूँ, तो कभी कभी बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि शायद ये सबके लिए बोल दो सॉरी। सबके लिए सॉरी, थैंक यू, किसी को बुरा लगा होगा हो गया, आपका कन्फेशन भी हो गया इस पे पॉडकास्ट में। ओके, थैंक यू सो मच केशव सर फॉर द Thank you, अपॉर्चुनिटी Saurabh. एंड थैंक यू आयशा टू Yes. कनेक्ट विथ मी Yes. एंड थैंक यू सो मच।